Well, she became a household name with Amir Khan star Dangal. But that's not when her journey began. Her journey has been incredibly long. In fact, the Fogart sisters, as they are better known as, have had an exemplary journey, a fight against all odds as a family for themselves. But it's not just about that. Vinesh Fogart has proved her mettle time and again, this time at the Olympics. It's been a jubilation literally for millions of Indians as star wrestler Vinesh Fogart began her dangal quote-unquote in Paris in a very emphatic style. And it's been stunning for many reasons. In fact, let's just look at what's been happening to her in the 2016 Rio edition. You had an excruciating ligament tear that she suffered, surgeries. Eventually, in 2023, you had protests in the streets of the national capital led by several top wrestlers, including Vinesh Fogart, against the then Wrestling Federation of India chief, Brij Bhushan Sharan Singh, to eventually qualifying under some very testing times, proving and quite efficiently staying on with her quota as well amid a lot of national lens. The journey has been incredible but extremely testing, and this only seems to be a beginning for all sorts. Vinesh has kicked off the bout in women's 50 kg freestyle event with a statement win over Japan's legendary grappler and world number 1 Yui Sasaki, in fact 4-time Olympic champion. The win was even more special because Yui Sasaki has never been beaten at any international event until now. Well, right after that, the star Indian wrestler outclassed Ukraine's Labak to enter the semi-finals of the event, beating the three-time Commonwealth Games gold medalist 7-5. And now Cuba's Guzman stands in between Vinesh and a shot at gold in Paris. I'm being joined at this point by Alka Tomar, who's an Indian wrestler who's brought India great medals and laurels, as well as Mr. Mukul, who's a former international wrestler himself. Thank you very much, both of you. Alka Tomar, I believe आप जहाँ पे हैं अभी आप कोचिंग करा रहे हैं. आप इंडियन कोच रेसलिंग विमेन टीम की कोच भी रह चुकी है. आप इंडिया के लिए काफ़ी मेडल्स भी जीत पाए हैं और आप यू आर एट अ प्लेस जहाँ पे अभी रेसलर्स की आप कोचिंग कर रही हैं. आप मुझे ये बताइए, विनेश फोगाट के साथ जो हुआ है, उन्होंने जो आज अचीव किया है, आप उसको कैसे देख रहे हैं? अलका तोमर जी, आप म्यूट पे हैं, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा. अलका तोमर जी, अगर आप अनम्यूट कर पाए. ओके, लेट मी जस्ट गो अक्रॉस टू मिस्टर मुकुल एट दिस टाइम एंड ट्राई टू पैच अलका तोमर इफ माय टीम. हाँ जी बताइए मिस अलका तोमर जी, बताइए, सुन सकते हैं हम आपको, बताइए. नेटवर्क का इशू हो रहा है, मैं जहाँ पर हूँ वहाँ पे नेटवर्क का थोड़ा सा इशू है. तो अभी मैं रेसलिंग की प्रैक्टिस ही करा रही हूँ और रेसलिंग के साथ मेरे को जुड़े हुए 20 साल हो गए, 20-24 साल हो गए मेरे को रेसलिंग से जुड़े हुए. मैं एज ए रेसलर भी रही हूँ, एज ए इंडियन टीम के साथ एज ए कोच भी रही हूँ और विनेश के साथ भी मेरे को कॉमनवेल्थ गेम्स में एज ए कोच मैं उनके साथ गई हूँ. तो आज जो विनेश का जी उसका परफॉर्मेंस मैं मानती हूँ. जिस तरह जो बातें आपने कही, उसके बाद आप इस लेवल पे जाके इस तरह का परफॉर्मेंस देते हैं. आप ओलंपिक की गोल्ड मेडलिस्ट को आपने हरा दिया है और क्वार्टर फाइनल में आपने जिस तरह से ये फाइट निकाली है, क्योंकि ये भी ओलंपिक मेडलिस्ट लड़की थी, तो एक बहुत ही शानदार प्रदर्शन विनेश का रहा है. और जो कल निशा दहिया का भी एक परफॉर्मेंस आपने देखा होगा, उसने लूज कर दी फाइट निशा दहिया ने, लेकिन वो भी काबिले तारीफ है. निशा दहिया ने जिस तरह से प्रदर्शन किया था उस लड़की ने, और वो जीत रही थी, जीतते हुए उसको इंजरी हुई, इंजरी के बाद भी उसने फाइट कंप्लीट की और मतलब उसके चेहरे का जो दर्द था हम सब महसूस कर सकते थे कि उस लड़की के साथ उस पे क्या गुजर रही होगी. क्योंकि जो आप फाइट जीत रहे हैं एक ओलंपिक में, वो फर्स्ट टाइम ओलंपिक में गई और उसके बाद वो क्वार्टर फाइनल की जो फाइट हारी है, तो हम सबको भी बड़ा मलाल है उस चीज का और बहुत दुख है, क्योंकि वो मेडल आ सकता था हमारा. जी
जी अलका तोमर जी, आप कह रही हैं कि आप वहां पे और भी रेसलर्स को अभी कोच कर रही हैं, आप ट्रेन कर रही हैं, आप हमें दिखा पाएंगी वहां पे माहौल क्या है? आप अब जब ये मैच चल रहा था विनेश फोगाट का, तब भी ये कोचिंग कर रही थी या मैच देख रही थी? नहीं, जब तो मैं मैच देख रही थी तब तो मैं घर पर थी। उस टाइम पे मैं उस टाइम पे मैं नहीं थी यहाँ पर, क्योंकि उस टाइम पे 5 बजे के बाद हम प्रैक्टिस शुरू करते हैं अपनी। तो इस तरह से ये बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये बच्चे सब प्रैक्टिस कर रहे हैं। जी और अब ये आप शाम की अलका फाइट जी, देखेंगे, आप रात की हमें फाइट बता देखेंगे। पाएंगी ये जो विनेश के साथ, विनेश ने जो आज हासिल किया, सब लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन आज सेमीफाइनल्स भी होने वाला है आज रात को। वो कैसी प्रिपेयर्ड लग रही हैं आपको विनेश? आई मीन उन्होंने फाइनली एक जो 4 टाइम ओलंपिक की विनर रही हैं, उनको उन्होंने हरा दिया। अब वो सेमीफाइनल्स पहुंच गए हैं, कैसा लग रहा है आपको? आई मीन क्या लग रहा है? उनकी प्रिपरेशंस तो काफी काबिले तारीफ लग रही हैं। देश को बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए, काबिले तारीफ है, जिसका गोल्ड मेडल था आपने उसको हरा दिया है, और सामने आपकी अब सेमीफाइनल फाइट है, तो उसको तो वो मेरे ख्याल से टेक्निकल फॉल कर देगी या बाई फॉल कर देगी विनेश, और उसके बाद फाइनल में जाएगी। जो फाइनल की दूसरे ग्रुप की जो लड़कियां आएगी मंगोलिया और चाइना में से, उसके साथ उसकी फाइट चलेगी, और मैं तो मानती हूँ वो गोल्ड मेडल आज लेगी, कल लेगी। कल उसका फाइनल रहेगा विनेश का, तो मुझे लगता है विनेश गोल्ड मेडल लेगी, मुझे पूरी उम्मीद है। अलका जी, एक थोड़ा सा सेंसिटिव सवाल पूछ रही हूँ, बिकॉज आप एक कोच भी हैं, एक रेसलर, महिला कोच रेसलर है, आप महिलाओं को वहां पे, महिला रेसलर्स को आप कोच कर रही हैं, और विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और भी कई इंडिया के टॉप रेसलर्स, काफी उन्होंने प्रोटेस्ट किए स्ट्रीट्स पे। ये सारी जो रेसलर्स अभी कोच कर रही हैं आप, वो इन सबको कैसे देखती हैं? आई मीन उसके बावजूद ये हासिल करना मेंटली कितना स्ट्रेंथ दिखाता है, कितना ट्रेनिंग और कितना स्ट्रेंथ पे फोकस किया गया है? तो रेसलर होते हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रोंग होते हैं, और विनेश से ज्यादा मेंटली स्ट्रोंग और प्रिपेयर इस टाइम पे मुझे कोई रेसलर नहीं लग रहा है। जिस तरह से जो आपने बताया विवाद रहा था उस टाइम पे, उसके बाद आप पीक पे आते हो, उसके बाद आप ओलंपिक मेडलिस्ट को हराते हो, उसके बाद आप अपना क्वार्टर फाइनल इतने इजी तरीके से जीत जाते हो, तो एक आपकी मेंटलिटी, आपकी प्रिपरेशन, जो एक आग है ओलंपिक मेडल की, वो दिखाती है इस चीज को, कि आपने कितनी लगन से, कितनी मेहनत से आपने प्रैक्टिस की अपनी। क्योंकि इस लेवल पे पहुंचना बहुत बड़ी बात है, इस लेवल पे आपको जीतना बहुत बड़ी बात है, इस लेवल के लिए आपने कितनी मेहनत की होगी, कितना प्रिपरेशन आपने किया होगा, वो मैं समझ सकती हूँ बिल्कुल। बहुत अच्छे से।